Hello and welcome to all of you in FTR series part 8, and in this part we are going to cover the questions from Delhi Sultanate, from Vijayanagar and from the Bahmani Sultanate. So this topic we are going to cover in this video. So let's start the first question of the video. So the first question, what it says: the third battle of Tarain was fought between. So they are asking about the Tarain battles and they are asking about the third battle. So Iltutmish versus Ulugh Khan or Iltutmish versus Tajuddin Yildoj, Yildoj versus Balban, or it was Balban versus Razia Sultan. So third battle of Tarain, यहाँ पर इसकी बात हो रही है. So let's see the first battle of Tarain, then the second battle of Tarain, and then the third battle of Tarain. Remember 1191 the first battle, 1192 the second battle, and 1215 to 16 the third battle of Tarain. So first battle of Tarain was fought between, remember, Chauhan versus Gauri, in which Chauhan defeated Muhammad Gauri. The second battle of Tarain, Chauhan versus Gauri, ये भी battle हुआ था, but in this battle Gauri defeated Chauhan. After that, Ghulam's dynasty was established. So in the third battle, 1215 to 1216, this battle was between Iltutmish versus Yildoj. Remember, there were so many enemies of Iltutmish, but this third battle of Tarain was fought between Iltutmish versus Yildoj. So the correct answer of this question is Iltutmish versus Taj al-Din Yildoj. This may be the correct answer of this question. So let's move to the next question. So next question is, which of the following statements are incorrect? You have to identify which of the following statements are incorrect. So the first statement is about Turkan-e-Chehalgami was a group of 40 nobles. Actually, Turkan-e-Chehalgami is also called as group of 40. Remember, या फिर आप इसको चालीसा दल भी कह सकते हो. Group of 40. Group of 40. And it was established by Iltutmish. Remember, it was established by Iltutmish. It was not established by Balban. So this statement is wrong. Balban was a member of Turkan-e-Chehalgami. ये तो बलबन जो है वो तो खुद इसका मेंबर था, तो वो कैसे इसको एस्टैब्लिश करेगा? So remember, it was established by Iltutmish. So these were Turkish amirs, or we can say these were nobles. These were nobles who advised and helped the Sultan in administrating the Sultanate. So after the death of Iltutmish, this group assumed a great power in its hands. For a few years, they decided on the selection of sultans one after the another. So this is the great power of Turkan-e-Chehalgami, who were Turkish amirs, and also we can say these were nobles. So it was established by Balban. No, it was established by Iltutmish. So this statement is correct, but second statement is false. Next is, it was finally abolished by Sikandar Lodi. No, it was not abolished by Sikandar Lodi. Actually, it was abolished by Balban. Remember, it was abolished by Balban. Now remember some important points from Balban. See, Balban holds the title of Zill-e-Ilahi. Zill-e-Ilahi का टाइटल भी किसने लिया था? तो ये बलबन ने ही लिया था. और साथ में ये याद रखना कि बलबन established दीवान-ए-अर्ज टू प्रोटेस्ट द मंगोल इन्वेंशन के लिए उसने दीवान-ए-अर्ज, जो कि एक डिफेंस था, जो कि इसकी आर्मी थी, ऐसा डिपार्टमेंट उसने एस्टैब्लिश किया था, तो वह भी दीवान-ए-अर्ज में बलबन का नाम आएगा. एंड ऑल्सो रिमेंबर, देयर वाज अ पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड for the suppression of internal rebel in the states. So these three are the most important from the Balban, remember. So we need to identify what are the incorrect statements, and second and third are the incorrect statements here. So the answer would be B. Okay. Now next, move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट. ठीक है, अब इसमें लिस्ट को मैच करना है. पहला डिपार्टमेंट है दीवान-ए-वजीरात, दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-इंशा और दीवान-ए-रसालत. ये चार डिपार्टमेंट्स हैं और मैच करना है डिफेंस, रॉयल करस्पॉन्डेंस, फॉरेन रिलेशंस और फाइनेंस के साथ. तो फर्स्ट अभी हमने बताया है दीवान-ए-अर्ज को हमने अभी डिस्कस किया था. दीवान-ए-अर्ज, इट इज नथिंग बट द डिफेंस डिपार्टमेंट एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बलबन. बलबन ने इसको एस्टैब्लिश किया था. एक्चुअली बलबन जब आया था तब उसने अपनी जो आर्मी है उसको एक नए तरीके से रीऑर्गेनाइज किया था. उसने ओल्ड एज लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया था. देखा जाए तो उसने आर्मी पर बहुत ज्यादा काम किया था, और स्पेशली उसने दीवान-ए-अर्ज जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है. सो दीवान-ए-अर्ज इज रिलेटेड टू डिफेंस. नेक्स्ट, दीवान-ए-वजीरात. दीवान-ए-वजीरात, वजीर मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर जो है किंग का प्राइम मिनिस्टर था वजीर.
वजीरात और वजीर का क्या काम होगा, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कह सकते हैं, या फिर फाइनेंस को देखना। तो ये सब जो है मेन रिलेटेड हो जाएगा फाइनेंस के साथ, तो आप इसको फाइनेंस के साथ जोड़ सकते हो। उसके बाद है दीवान ए अंश। दीवान ए अंश इज नथिंग बट द पोस्ट ऑफिस, postal department, so we can connect it to the royal correspondence. And next is Diwan e Rasalat, it is nothing but the foreign relations, Diwan e Rasalat. So Diwan e Rasalat means the foreign department, so we can connect it with the foreign relations. So the correct answer is C. So C is the correct answer. 4, then 1, then 2, and then 3. So this is the relations here. Now move to the next question. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इक्ता सिस्टम आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यस, हमको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, इक्ता सिस्टम से है। इट वाज असाइन्ड टू ऑफिशियल्स इंस्टीड ऑफ पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक मेड इट हेरेडिटरी। तो यस, इसने बनाया था। और इट वाज आल्सो कॉल्ड खराज। तो यहां पर इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि इट वाज असाइन्ड टू ऑफिशियल इंस्टीड ऑफ पेमेंट ऑफ देयर सर्विसेज। So let's discuss about something Ikta system. The agriculture and land revenue system of the early Turkish sultans was rested in 2 foundations. 2 फाउंडेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला जो है वो तो इक्ता हो जाएगा, इक्ता, और दूसरा जो फाउंडेशन की हम बात करेंगे वह हो जाएगा खराज। इक्ता का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जबकि खराज का मतलब होगा लैंड रेवेन्यू। सो ये 2 फाउंडेशंस उस समय थी। सो अंडर इक्ता सिस्टम, रिमेंबर, अंडर इक्ता सिस्टम द लैंड ऑफ द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज और स्मॉल ट्रैक्ट्स, एंड देन दिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड इक्ता। उसी लार्ज स्मॉल ट्रैक्ट्स को ही आप इक्ता कहते थे। और ये जो इक्ता है ये असाइन कर दिया जाता था सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को, नोबल्स को असाइन कर दिया जाता था, एंड दे वर कॉल्ड एज इक्तेदार। तो एक्चुअल में उनको सैलरी देने की जगह आपने क्या दे दिया, आपने उनको लैंड दे दिया, मतलब उनको इक्तेदार बना दिया था आपने, और इस लैंड से जो रेवेन्यू होगा वही हो जाती थी उनकी सैलरी। तो हाँ, ये जो करेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है कि इट वाज असाइन्ड टू ऑफिशियल्स इंस्टीड ऑफ पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज, दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। फिरोज शाह तुगलक मेड इट हेरेडिटरी। तो यहां पर याद रखो कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में अगर बात करें, सो इक्ता सिस्टम वाज रिलेटेड टू द सैलरी, है ना, तो ये सैलरी से ही रिलेटेड था। बट जैसे जैसे आगे बढ़े फिरोज शाह तुगलक ने इसको हेरेडिटरी कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वाज आल्सो कॉल्ड खराज। तो हमने तो डिस्कस कर दिया कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था अर्ली तुर्किश का, खराज जो है वो अलग था और इक्ता क्या है, अलग था। सो ये खराज कैसे कहलाएगा, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमको बताना है सही, करेक्ट को बताना है कि रॉन्ग को बताना है, करेक्ट को बताना है, हेंस द आंसर इज। तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। ये हमने डिस्कस किया इक्ता सिस्टम, और इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मैच लिस्ट है। पहला तो जो हुलिया सिस्टम है उसकी बात हो रही है, जिसको आप चेहरा कहते हो। दूसरा पैबोस, पैबोस के बाद है नौरोज, और उसके बाद है सजदा। ये सिस्टम्स क्या थे, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो सजदा है, पैबोस है, और जो नौरोज है, नौरोज एक फेस्टिवल का नाम है, ये सब के सब जो है वो एक ही रूलर से रिलेटेड है, जिसका नाम है बलबन। किससे रिलेटेड है, तो ये सब आपके बलबन से रिलेटेड है। तो बलबन की अगर बात करें तो बलबन डिजाइन हिज कोट इन पर्शियन स्टाइल, बहुत ही धुएंधार तरीके से सजा धजा सा रहता था, फिल्मी हीरो जैसे आप कहते हो उस तरीके के रहता था। पूरे के पूरे कोट को उसने पर्शियन स्टाइल में ही डेकोरेट कर दिया था। ठीक है, इसने 2 पॉलिसी यहां पर इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से पहला मैं आपको बता दूं सजदा है। सजदा का मतलब होता है कि टू वर्शिप ऑन द नीज, झुकना को हम सजदा कहते हैं। दूसरा था पैबोस, पैबोस का ये था कि सुल्तान के पैरों को चूमना, टू किस द फिट्स ऑफ द सुल्तान। तो यानी कि पैबोस जो है वो पैरों से रिलेटेड हो जाएगा, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप द फीट ऑफ द सुल्तान, है ना, पैरों से कनेक्शन किसका आ जाएगा, वो आ जाएगा पैबोस का। सजदा का मतलब क्या हुआ, झुकना, टू वर्शिप
टू द नीज, तो सजदा का मतलब हो जाएगा बेंडिंग टू द सुल्तान, झुकने की बात हो गई। उसके बाद नौरोज, ही ऑल्सो स्टार्टेड द इरानियन न्यू ईयर, इसने फारसी न्यू ईयर की भी शुरुआत की जिसको आप नौरोज कहते हो। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं बलबन से रिलेटेड हैं, मैंने अभी आपको बताया, और एग्जाम में कई दफा इसके बारे में पूछता है, किसके बारे में, बलबन। और बलबन के बारे में दो पॉइंट्स और याद रखना, पहला तो दीवान ए अर्ज वाला जो पॉइंट है अभी हमने उसको डिस्कस किया था, और दूसरा अभी मैंने बताया आयरन और ब्लड की जो पॉलिसी है वो भी बलबन की आती है। अब डिस्कस करते हैं चेहरा सिस्टम, या फिर बात आ रही है हुलिया सिस्टम की, चेहरा या इसी को हुलिया सिस्टम भी कहेंगे। So this is related to Hulia system is related to Alauddin Khilji. Remember ये AK से related है। Alauddin Khilji started this system. In this system where one military officer, उसका जो नाम था वो था मुमालिक, military officer used to register the appearance of the soldiers so that to sort out any problem or to sort out any corruption ना हो, इसलिए उनका अपीयरेंस, उनके शरीर पे अगर कोई निशान है तो वो सब रजिस्टर किया जाता था, मतलब दाग हो गया, कोई चेहरे में अगर कोई तिल हो गया तो उस सिस्टम को आप कहते थे हुलिया सिस्टम, या फिर ये भी कह सकते हैं चेहरा सिस्टम। याद रखो अलाउद्दीन खिलजी ने एक और सिस्टम यह स्टार्ट किया था जिसको आप दागनी सिस्टम कहते हो। दागनी सिस्टम का मतलब होता है फायर स्टैंपिंग ऑन हॉर्सेस, क्योंकि जो दूसरे जो होते थे, दूसरे जो सोल्जर्स होते थे वो ओल्ड एज हॉर्सेस को शामिल कर देते थे, तो इस करप्शन को भी हटाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दागनी सिस्टम को लॉन्च किया था। और उसके साथ सोल्जर्स की भी बात कर रहे हैं, रिमेंबर सैलरीज वर गिवन टू द सोल्जर्स इन प्लेस ऑफ जागीर, इन प्लेस ऑफ स्टेट, सैलरीज वर गिवन टू द सोल्जर्स बाय अलाउद्दीन खिलजी। सो हियर इज द करेक्ट डिटेल। सो व्हाट शुड बी द आंसर, जो आप चेहरा है उसको मिलाओगे सोल्जर्स के साथ, ठीक है, पैबोस भी हो गया, नौरोज क्या हो जाएगा, वो पर्शियन न्यू ईयर हो जाएगा, कौन सा आपका, नौरोज। तो द करेक्ट आंसर इज 4132, तो ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कस करने के बाद चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, चलिए बताना है आपको तारिक ए फिरोज शाही। अब ये कुछ मेन जो है लिटरेचर्स जो है उस समय के जो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड करते हैं उनके बारे में, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तारिक ए फिरोज शाही है, दूसरा है फतुहत ए फिरोज शाही, और तीसरा है फतवा ए जहादारी। क्या इसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था और जियाउद्दीन बर्नी ने इसको लिखा था? इसमें से कौन से मैच जो है सही है वो बताना है। तो बर्नी जो है, बर्नी ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ही आया हुआ था, मतलब इसने इसी के टाइम में या इसी के रेन में यहाँ पर आया था, कौन, बर्नी, और ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, इसने बहुत इंपॉर्टेंट बातें दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखी हैं, बर्नी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है फतुहत ए फिरोज शाही। सो दिस इज वेरी वेरी करेक्ट मैच। एंड व्हाट वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक? तो रिमेंबर द नेम, फतुहत ए फिरोज शाही। तो जियाउद्दीन बर्नी वाज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ दिस पीरियड एंड हिज मोस्ट वैल्यूएबल वर्क जो है, इसकी मोस्ट वैल्यूएबल वर्क है तारिक ए फिरोज शाही, जो कि इसने किसके साथ लिखी थी? तो वह भी आपको बता दूं कि ये भी अगर नाम आएगा तो करेक्ट आ जाएगा, शम्स सिराज आफिफ, ये नाम है, शम्स सिराज आफिफ, ये नाम दिख रहा है कि इसके साथ उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल वर्क जो है वो तारिक ए फिरोज शाही का नाम आता है। तो बर्नी आए या आफिफ आए, दोनों नाम जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बर्नी ऑल्सो रिट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और वो बुक जो है वो है फतवा ए जहादारी। तो फतवा ए जहादारी बुक डील्स विद द पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें शरीयत के कुछ लॉस भी लिखे हुए हैं जो कि नाम है फतवा ए जहादारी। तो ये भी करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया। और अगर मैंने पहले ही बताया था फिरोज शाह तुगलक की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है फतवत ए फिरोज शाही। तो ये पर्शियन हिस्टोरियंस के नाम हो गए, पर्शियन लिटरेचर हो गया जो इस पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बताइए इसमें से कौन कौन सा सही मैच है, ये पूछ रहा है। यस, ऑल आर, सभी के सभी जो है वो करेक्ट मैच यहाँ पर दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी कह रहा है 1296 में कौन सा? मंगोल इन्वेडेड दिल्ली, देन हरिहर एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर स्टेट, then Taimur's invention, then establishment of Agra city by सिकंदर लोधी, and then दौलताबाद transfer of capital from दिल्ली। इसमें साफ साफ मैंने ईयर दिखा दिए हैं, तो ईयर के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट मंगोल इन्वेंटेड एट दिल्ली। 1296 एडी की बात हो रही है, तो यहीं से अगर हम आगे जाएं 1296 एडी की बात होगी तो 1296 से लेके 1316 एडी तक दिल्ली सल्तनत में जो रूलर था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सो ये जो बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी became the Sultan of Delhi in 1296 AD and got coronated
at the Lal Mahal of Balban in Delhi. So remember, like Alexander, he also aimed at world victory का उसको aim था और इसीलिए उसने entitle himself as a सिकंदर सानी और we can say Alexander II. और उसी के टाइम में मंगोल्स अटैक हो रहे थे. So to reduce this Mongol invention, he also built, जो मंगोल इन्वेंशन थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड में हो रहे थे, उस फ्रंटियर में हो रहे थे. सो टू रिड्यूस दिस मंगोल इन्वेंशन ही बिल्ड अ किला नेम एज सीरी किला. सीरी किला उसने बनाया था नॉर्थ वेस्ट साइड में और उसी को अपनी कैपिटल भी बना दिया था. तो अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें कि मंगोल इन्वेडेड दिल्ली, इसका रिलेशन किसके होगा, तो डायरेक्ट 1296 से इसका रिलेशन दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं, हरिहर एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर स्टेट. तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड जब चल रहा था उस समय दो स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. एक तो था विजयनगर और दूसरा था बहमनी स्टेट. तो विजयनगर सल्तनत और बहमनी सल्तनत ये दो हो जाएंगे. तो हरिहर एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर एम्पायर इन 1336. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. हरिहर के साथ एक बुक्का का भी नाम आता है और बुक्का ने भी एस्टैब्लिश किया था, लेकिन ये हुआ था 1336 में. जबकि यहीं पर मैं आपको बता दूं कि 1347 में जो है वो बहमनी सल्तनत, बहमनी एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. हसन गंगू या हसन बहमन गंगू ने इसको किया था. तो 1336 में विजयनगर हो गया. तैमूर्स इन्वेंशन की अब बात करते हैं. तैमूर्स इन्वेंशन की अगर बात होगी तो तुगलक डायनेस्टी में जाना पड़ेगा. फिरोज शाह तुगलक के बाद अब जो लास्ट तुगलक रूलर हुआ दिल्ली सल्तनत में, द लास्ट तुगलक रूलर का नाम बता दूं, उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद. नसीरुद्दीन महमूद वाज द लास्ट तुगलक रूलर. सो ड्यूरिंग हिज रूल, यानी कि 1398 एडी में, 1398 एडी की बात हो रही है, एक तैमूर लंग इन्वेडेड दिल्ली. So Nasiruddin Mahmud defeated by Taimur Lung and Taimur Lung conquered the whole Delhi in 1398 AD. Yes, 1398 AD is related to Taimur's invention. Next is establishment of Agra city by Sikandar Lodhi. It means now we are talking about Lodhi dynasty. और लोधी डायनेस्टी में भी सिकंदर लोधी का जो पीरियड है, सिकंदर लोधी का पीरियड 1498 से लेकर 1517 तक का सिकंदर लोधी का पीरियड है. और इस पीरियड में यानी कि 1504 में he established Agra city on the bank of the river Yamuna. So remember another one more thing, he was the most famous ruler of the Lodhi dynasty also, and he became Agra as the second capital and placed a dual rule in Agra. So 1504 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आगरा सिटी का बाय सिकंदर लोधी. सो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट, दौलताबाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली. सो दिस वर्क वाज डन बाय द मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा इतिहासकार बताते हैं क्योंकि सेंटर में था, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो रहा था, तो देवगिरी जो है वो सेंटर में था और बाद में इसने जो कैपिटल है वो देवगिरी कर दिया था और नाम चेंज करके उसको क्या कर दिया था, दौलताबाद कर दिया था. तो ये जो काम किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये वाला काम किया था. तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या निकल रहा है. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि स्टेट से जुड़ रहा है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपको जो टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं और उनके ऑथर से इसको जोड़ना है. पहला जो बुक है वो है किताबुल हिंद, दूसरा है रेहला, नेक्स्ट इज हुमायूं नामा और नेक्स्ट इज बादशाह नामा. बहुत पूछी जाती हैं किताबें दिल्ली सल्तनत से. तो चलिए इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इब्न बतूता की. इब्न बतूता जो है वो किसके रूल में आया था और किसके रेन में आया था, तो ही केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. पहले तो ये क्वेश्चन बन गया, मोहम्मद बिन तुगलक कब आया था ये भी पूछा जाता है. तो 1333 में इब्न बतूता आया हुआ था. तो ही वॉज अ ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को. Remember, he was a traveler from Morocco and he came in 1333 AD. So during the reign of Muhammad bin Tughlaq, he appointed him as a Qazi of Delhi. इसी ने उसको दिल्ली का काजी बनाया था. ठीक है ना, तो ये भी चीजें हमको याद हो गई. और 1342 में he was appointed as ambassador and sent to China. तो ये हो गया सब कुछ इब्न बतूता के बारे में. और ये याद रखना कि इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी वह थी किताबुल रेहला. रेहला वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ इब्न बतूता. और इसमें जो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी यह भी पूछा जा सकता है. तो रेहला जो है वो अरबी लैंग्वेज में लिखी हुई थी. अगला बात करते हैं किताबुल हिंद की. तो इसका कनेक्शन अल-बरूनी के साथ होगा. किताबुल हिंद किसने लिखी थी, अल-बरूनी ने. हुमायूं नामा जो है हुमायूं की बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा.
ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और बादशाहनामा वाज रिटन बाय लाहौरी। सो हियर इट इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हम देखें सही आंसर कौन सा है। तो द करेक्ट आंसर इज डी, 2, 1, 4 एंड 3। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स हमको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है द विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का एंड हरिहर बिकेम इट्स फर्स्ट किंग। अभी मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दो एम्पायर जो है उनका फॉर्मेशन हुआ था। एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी एम्पायर। तो विजयनगर जो एम्पायर है वो हरिहर एंड बुक्का ने ही फॉर्म किया था एंड हरिहर वाज अ फर्स्ट किंग। सो यस, दिस इज द वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। चलो अब डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। क्लैश था बिटवीन विजयनगर किंगडम रूलर्स एंड द बहमनी किंगडम। इन दो के बीच में जो क्लैश था पूछ रहा है दैट वाज ड्यू टू मराठवाड़ा कंट्री। सो द क्लैश बिटवीन द विजयनगर रूलर्स एंड द बहमनी किंगडम व्हिच वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347। बहमनी कब आया? बहमनी 1347 में आया। सो द क्लैश वाज बिटवीन थ्री सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एरियाज। तीन एरिया जो है वो कौन कौन से होंगे? द फर्स्ट एरिया वाज तुंगभद्रा दोआब। तुंगभद्रा दोआब जो है वो पहला एरिया था। दूसरा एरिया था कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। एंड द थर्ड एरिया वाज, सी हियर, द थर्ड एरिया वाज मराठवाड़ा कंट्री। सो दिस एरिया मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। दोनों के बीच में जो क्लैश चल रहे थे उसमें से एक रीजन था मराठवाड़ा कंट्री। चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब्दुल रज्जाक ऑफ पर्शिया विजिटेड द किंगडम। तो ये भी जो है एक फॉरेन ट्रेवलर ही था। अब्दुल रज्जाक विजिटेड द किंगडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ संगम डायनेस्टी। चलो अब समझते हैं। तो ये जो हरिहर बुक्का थे ये सब संगम डायनेस्टी के ही थे। तो फर्स्ट लेट्स टॉक समथिंग अबाउट संगम डायनेस्टी। अगर हम संगम डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहला जो हम रूलर लेंगे वो हम लेंगे हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट के बाद अगला होगा बुक्का फर्स्ट, देन उसके बाद अगला होगा हरिहर सेकंड, देन देवराय फर्स्ट और उसके बाद आएगा द इंपॉर्टेंट रूलर जिसका नाम है देवराय सेकंड। तो ये पांच रूलर हमने संगम डायनेस्टी में है, जिसमें से हरिहर फर्स्ट को तो हम जानते ही हैं। उसके बाद देखो देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तब इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हमको मिलेगा। द देवराय फर्स्ट वाज डिफीटेड बाय बहमनी रूलर जिसका नाम था फिरोज शाह इन 1407। ये भी इसके बारे में पूछा गया, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देवराय फर्स्ट, इसलिए मैंने डिस्कस किया। देवराय सेकंड की अगर बात करते हैं, देवराय सेकंड कौन था? तो ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। रिमेंबर व्हाट वाज द रीजन? एक्चुअली ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉयिंग मुस्लिम्स इन हिज आर्मी। इन हिज इंस्क्रिप्शन ही हैज अ टाइटल। इसके पास एक टाइटल भी था, इसका टाइटल भी एग्जाम में पूछ सकता है। गजबेटका जो है, गजबेटका यानी कि द हंटर ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का शिकारी। गजबेटका जो टाइटल है वह किसका था? तो वह देवराय सेकंड का था। एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड एज इम्माडी देवराय। ही वाज आल्सो कॉल्ड एज इम्माडी देवराय। तो ये बात भी इसके बारे में याद रखिएगा। इम्माडी देवराय किसको कहते थे? वह देवराय सेकंड को कहते थे। तो देवराय सेकंड के रूल में ही, इसी के टाइम में ही अब्दुल रज्जाक जो कि पर्शियन है, उसने किंगडम को यानी कि उसने विजयनगर किंगडम को विजिट किया था। तो किसके में किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना देवराय सेकंड। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर वेरी करेक्ट। सो द आंसर इज डी। आपको सही बताना है, गलत? यस, आपको सही बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उसमें बहमनी किंगडम से रिलेटेड है और कौन कौन से उनके फाउंडर हैं ये आपको बताने हैं। कौन कौन सा है? तो पहला है बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। और इनके फाउंडर हैं और कब हुए हैं इसमें आपको मैच करना है। सबसे पहले बात करते हैं 1489। 1489 के बाद 1490, फिर 1512 और उसके बाद 1526 या फिर 1527। 1489 में सबसे पहले यूसुफ आदिल शाह ने जो है, जो कि फाउंडर थे, तो बीजापुर को एस्टैब्लिश किया था यूसुफ आदिल शाह ने। कौन से ये डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वह भी पूछा जा सकता है, वह है आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे 1489 बीजापुर, और बीजापुर में गोल गुंबद का जो फॉर्मेशन है वो भी इन्होंने ही करवाया था। चलिए अगला बात करते हैं 1490। 1490 में मलिक अहमद जो है, मलिक अहमद जो कि अहमदिया डायनेस्टी के थे, अहमदिया डायनेस्टी के थे, और इन्होंने जो है फॉर्मेशन किया था अहमदनगर का।
तो अहमदनगर जो है वो रिलेट किससे हो गया, मलिक अहमद से 1490 में। उसके बाद सीधा चलते हैं 1512 में कुली कुतुब शाह मतलब कुतुब शाही डायनेस्टी, और कुतुब शाही डायनेस्टी से इन्होंने गोलकुंडा का फॉर्मेशन करवाया था। ठीक है, तो गोलकुंडा जो है वो 1512 में हो जाएगा। हैदराबाद का चार मीनार भी इन्हीं के नाम है, कौन, कुली कुतुब शाह के नाम है। और उसके बाद 1526 या फिर 27 में अली बुरीद, जिसको आप बारसम मुरीद या कालसम मरीद भी कहते हो, अमीर अली के नाम से भी जानते हो, तो अमीर अली जो है ये लेना यहाँ पर, अली नाम से जो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। 1526 या 27 में जो बहमनी साम्राज्य था वह था आपका बीदर। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसने किसने फॉर्मेशन किया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले है बीजापुर के बाद अहमदनगर, फिर गोलकुंडा और उसके बाद है बीदर। So the correct answer of this question is A, 3, 4, then 1 and then 2. Okay, now let's move to the next question. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग किंगडम या डायनेस्टीज, मतलब तुलुक हो गया, बीजापुर सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत और अहमदनगर। तो ये वाला तो विजयनगर का है, तुलुक डायनेस्टी की बात हो रही है। चलो, बोल रहा है द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी इन 1565 was fought between, अरे बहुत विध्वंसक युद्ध था, बहुत एक भयानक युद्ध था, जिसको राक्षसी तंगड़ी या फिर तालीकोटा का बैटल भी इसी को कहा जाता है। याद रखना, तालीकोटा का बैटल कब हुआ था, 1565। किसके किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य वर्सेस विजयनगर एम्पायर वर्सेस ये बहमनी एम्पायर, इन दो लोगों के बीच में हुआ था। यहां से कौन लड़ा था, विजयनगर एम्पायर से कौन लड़ा था। तो जब 1565 यहां पर चल रहा था, तब कौन सा डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में था, तो वो डायनेस्टी था तुलुक। तो तुलुक डायनेस्टी की बात कर ली। पहले तो वीर नरसिंह जो है, वीर नरसिंह ये हो गए फाउंडर। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कृष्णदेव राय यहां पर आएंगे। याद रखना, कृष्णदेव राय वाज द मोस्ट पॉपुलर और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। और उसके बाद जो अगला रूलर होगा उसका नाम मैं लिख रहा हूं सदाशिव, और इस सदाशिव का ही जो कमांडर था उसका नाम याद रखना, उसका नाम था राम राय। तो उसका नाम क्या था, राम राय। तो विजयनगर एम्पायर की तरफ से कौन लड़ेगा, राम राय लड़ने के लिए आएगा, क्योंकि उस समय किसका रेंज चल रहा था, तो सदाशिव का रेंज चल रहा था। लेकिन जो रियल पावर है, रियल पावर वो किसके हाथ में थी, वो राम राय के हाथ में रियल पावर थी। चलिए अब अगर आगे बढ़ते हैं, अगर हम बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं, तो यहां से कौन लड़े, यहां से बीजापुर सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत और अहमदनगर सल्तनत, ये तीनों जो है बहमनी साइड से लड़ रहे थे। So this battle was between Vijayanagar and the Bahmani Empire between in 1565. कब हुआ था, 1565 में हुआ। तो अब अगर ये पूछ रहा है कि ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो यही चारों तो थे। So what will be the answer? The answer would be D. So after the Talikota battle, or we can say Rakshasi Tangdi battle, the Vijayanagar Empire was totally abolished. So this was the last question of this video. Hope you will like this video. So we will meet in the next video with some new questions. Till then, all the best and Jai Hind. CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।